So, a graceful and warm good afternoon to our most valued guest of today's program, the other dignitaries members, faculty members, and all the wonderful students who are going to connect with us for today's program. It gives me immense pleasure to extend you a very warm welcome on behalf of Sagar Institute of Science, Technology and Research, Ratibad, who has gathered all of us for the online workshop on entrepreneurship and innovation as career opportunity. This program is basically organized by IIC, that is Institutions Innovative Council, and SISTEC Ratibad, which is under Ministry of Education and MHRD Department. With this IIC, it is providing the opportunity to our wonderful students to take participation in innovation related initiatives and other competitions which is organized by MHRD Department. Students can also attend online seminars, workshops, they can interact with the entrepreneurs, they can get direct guidance by the industry professionals and so on. It also provides the opportunity to our students to nurture and prototype new ideas while being in the informative years of their engineering. Students can also win exciting prizes and certificates every month. Do check the official website of IIC later this program. Well, there is a famous quote which says, if the opportunity doesn't knock, then you have to create one. With this same zeal and enthusiasm, let me throw some more light on today's event and the term entrepreneurship. So much like every other industry in the world, the engineering landscape is evolving at a rapid rate. So the demand for engineers with innovative and entrepreneurship mindset and skills has never been greater than before. Well, entrepreneurship is in everybody's blood, but to get the right mentorship by the right person, of course, and at the right time is actually going to decide one's successful career. And being an engineer, entrepreneurship would definitely be an additional boon. So with this brief introduction about the program and without wasting much time, let me all give you a brief introduction of our honorable guest for today's program, Mr. Pradeep Karambelkar sir. And it also gives me immense pleasure to give you the biodata of Mr. Pradeep Karambelkar sir. Well, Mr. Pradeep Karambelkar sir doesn't need any introduction. He's already a well-known face in town and a successful business coach and entrepreneur. He is a business coach, a mentor, a successful entrepreneur, and also an angel investor. He is the founder of Vision Advisory Group, which is into investment, healthcare, journalism, and trainings. He has seed funded more than 10 startups and have also mentored more than 20 startups and helped them in progressing. He has founded MP's first government-approved incubation center, and currently he is serving as a regional partner with India's largest angel investment group, that is Venture Catalyst. He gets the wholesale credit for bringing BNI to Bhopal, that is the leading business networking and referral organization, and also serving as a regional director of it. He is the state chairman with PhD, Chamber of Commerce and Industry, vice chairman with TIEMB, co-chairman with Bhopal Management Association. He has bagged great name and fame and has won some prestigious awards. Few of them are Pride of MP by Dainik Bhaskar Group, Icon of Bhopal by Patrika, MP Ratna Award by MP Press Club. He is also on the mentoring board of various prestigious institutes nationally. His contribution and industry academia is also recognized by the President of India. Wow, this introduction itself says that sir is a gem of a person, and I believe that our audience is so curious to hear from you, sir. So over to you. I hand over the session to you, sir, and again welcome you for the session. Thank you, Professor Dr. Pallavi Dikshit, and thank you all the SISTEC members and professors, seniors, and those who are listening to this whole program. Thank you very much again, and this is the second time or third time I am speaking on SISTEC platform, and it's really grateful. I'm really grateful for that such organization and such
prestige institute and a premium institute of the city is invited me for such an important topic on entrepreneurship as one of the career option. And I feel really great because as an entrepreneur and as a businessman, I always believe when I started my journey, I never thought of that it can be deemed or it can be mentioned as career option. Generally, हमारे देश में और हमारे हम लोगों के समय में एंटरप्रेन्योरशिप करना या बिजनेस करना कभी भी कैरियर ऑप्शन में गिना ही नहीं जाता था और आज भी ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि खुद का बिजनेस करना या एंटरप्रेन्योरशिप करना ये सब कैरियर ऑप्शन है कि नहीं। पहले तो जॉब देखते हैं, पहले हमारे कैंपस में कौन कौन आता है ये देखते हैं और कॉलेजेस भी, इंस्टीट्यूट्स भी और यूनिवर्सिटीज भी जब किसी बच्चे को अपने एडमिशन देता है तो वो हमेशा यही कहता है कि हमारे यहाँ कैंपस में ये लोग आते हैं। सो जनरली जो पूरी एक थॉट प्रोसेस है, जो एक पिचिंग है और जो कैरियर की प्लानिंग है, मैं बहुत सारे कैरियर काउंसलर से भी मिलता हूँ, बहुत सारे कैरियर काउंसलर्स को भी जानता हूँ और वे सभी जनरली जब बात करते हैं तो अल्टीमेटली वो जॉब पे जाके खत्म होती है। वो खत्म होती है कि वो आगे जाके इसमें कौन सा जॉब कर सकते हैं, कहाँ उनको कैरियर ऑप्शन मिल सकता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इस क्षेत्र में आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी मिल सकती है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू सिस्टेक दैट they have came out with this thought process that entrepreneurship and innovation can be a career option also and career opportunity also. So thank you again. And with that note, I start. I have few slides, though I never do slide presentations. But yes, this time I have prepared with my colleague Amrita. She has created this slides for me, and I'm really thankful to her that she has made this. And this is me. And we are into Vision Advisory Services, a company which I started almost 17 years back now. And we are in multiple fields, starting from investments. And why I'm telling this? Because once आप जितने भी बच्चे जब बाद में क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे तो इन सभी क्षेत्रों से मुझसे पूछ सकते हैं अगर आप कुछ भी करना चाहते हो। तो मैं इन्वेस्टमेंट्स की एक छोटी सी परिभाषा, मतलब मैं LIC एजेंट था और पोस्ट ऑफिस एजेंट था 2003-4 में जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया आज से 17 साल पहले। और वहां से ये चालू होकर आज हम लगभग वन स्टॉप इन्वेस्टमेंट्स, शायद इन्वेस्टमेंट्स के सारे प्रोडक्ट, चाहे वो शेयर ट्रेडिंग हो, म्यूचुअल फंड्स हो, रियल एस्टेट हो, एंजल फंडिंग हो, स्टार्टअप फंडिंग्स हो और जितने प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स के प्रकार हो सकते हैं हम उसमें सब में कार्य करते हैं। उसके अलावा हम मध्य प्रदेश शासन के लगभग 40 से अधिक डिस्ट्रिक्ट जिला चिकित्सालय और सिविल अस्पताल, ई अस्पताल को रन करते हैं। तो ITES और हेल्थ सेक्टर में भी हम काफी काम करते हैं। लगभग 1 करोड़ मरीजों को हम साल भर में सर्व करते हैं। उसके अलावा हम इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जहां पर हम स्टार्टअप्स के साथ काम कर सकते हैं और करते हैं। हमको फंडिंग सपोर्ट देते हैं, मेंटरिंग सपोर्ट देते हैं और ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग्स, इन सब में भी हम ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं मध्य प्रदेश शासन के साथ भी और भारत सरकार के साथ भी। मंथली मैगजीन भी रन करते हैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के नाम से पिछले 8 सालों से। सो मल्टीपल बिजनेसेस वी डू। और अब हमारे स्टार्टअप्स जो हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो लगभग 10-12 हैं जिनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं और उनके बोर्ड पर भी मैं हूँ। तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हेल्थ केयर से आते हैं, फिजियोथेरेपी से आते हैं, साउंड थेरेपी से आते हैं, फूड एंड बेवरेजेस से आते हैं और ये सारे क्षेत्रों से वो जुड़े हुए हैं और वो IT से भी जुड़े हुए हैं। सो पिछले कई वर्षों में मैंने बहुत सारे एक्सपोजर और बहुत सारे बिजनेसेस को अपने करीब से देखा है और इसके कारण मैं समझ पाता हूँ कि मैं बहुत सारे बिजनेसेस को समझ पाता हूँ। So that's what in nutshell about me and how I had started in my journey in 2003-4 as entrepreneur. Before that, 2003-4 से पहले मैं 1995 से लेकर 2003 तक दिल्ली में एम्प्लॉई था। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैं GM था। उसके पहले मैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में मैनेजर था। सो lot of new thoughts process and various industries I have came across in last 25 years. I passed MBA 25 years back. तो लगभग 25 साल पहले। तो और आज मेरे जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं या जो मेरे साथी मुझसे सुन रहे हैं वो लगभग उस वक्त पैदा हुए होंगे या कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे जो आज मुझे सुन रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतर समय में पैदा हुए हैं और जब आप ये पास करके आगे जाएंगे तो आप और बेहतर दुनिया में जाएंगे। शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया दिख रही है बेहतर होती हुई और लग रहा है कि जो व्यक्ति इस वक्त बहुत अच्छा इस अपॉर्चुनिटी को कैच करेगा उसके लिए ये बहुत खूबसूरत समय होगा, बहुत शानदार समय होगा।
सो आई एम कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, जो भी मुझे, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सभी लोगों को जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, कि इससे बेहतर समय नहीं आने वाला। इतना बूमिंग सब कुछ फिर से नहीं होने वाला। कोविड ने क्या किया है? कोविड ने सबसे बड़ी बात क्या की है? वो अचानक आया। पहले तो टेक्नोलॉजी को 10 साल पहले ले आया। जो चीज 2028-30 में होने थी वो 2020-21 में आ गई। मुझे नहीं लगता कि मार्च 2020 में किसी ने कभी सोचा होगा कि मैं दिन भर, मैंने पिछले 8 महीनों में लगभग 60 से अधिक वेबिनार किए हैं, कि मैं इतना अधिक ऑनलाइन बोल रहा हूँ, या किसी ने सोचा नहीं होगा। मैं तो जूम भी इसी लॉकडाउन में ही सीखा कि ऐसा भी कुछ जूम होता है और ऐसे ऑनलाइन बोला जा सकता है। सो 10 ईयर्स, 8 से 10 साल हम पहले आ गए। उसके अलावा सारी कस्टमर परसेप्शन बदल गई। आप सोचिए, जिन लोगों ने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया था, या जिन लोगों ने मेरे जैसा ही बिजनेस शुरू किया था, या जो लोग आज से 20 साल पहले जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था और उसका बिजनेस का एक प्रकार बनाया था, उसको स्टैब्लिश किया था, उसका एक मोडस ऑपरेंडी बनाया था, उसकी एक थॉट प्रोसेस थी, आज वो स्टैंड स्टिल हो। सारे बिजनेस स्टैंड स्टिल हो गए। उनके 20 साल की मेहनत रुक गई। उनको नए ढंग से सोचना पड़ रहा है। सोचिए आप, जो 20 साल से काम कर रहा था, उसको सोचना पड़ रहा है कि अगले 20 साल अब वो क्या काम करे, या 10 साल क्या काम करे, कि जो अब तक वो कर रहा था वो बहुत हद तक चेंज हो गया। क्योंकि कस्टमर की परसेप्शन बदल गई है, कस्टमर का ओरिएंटेशन बदल गया है। और आप कितने लकी हैं, सोचिए। आपको खाली स्लेट पे लिखना है, उसको गुदी हुई स्लेट पे अपना स्थान ढूंढना है, जो उसने पिछले 20 साल में भरी है। उसको अब वहां जगह बनानी है। आपको तो स्लेट ही सफेद मिल रही है, साफ स्लेट मिल रही है। आप सब कुछ नया कर सकते हैं। और जब आप सब कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि पीछे का स्लेट ही साफ हो गई, किसी को अनुभव ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि एजुकेशन, जो दो फील्ड हमारे बिजनेस में हमेशा कहते थे और हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग कहते थे कि एजुकेशन और खाना, शिक्षा और भोजन, ये बिजनेस कभी इफेक्ट नहीं होते। लेकिन कोविड में शिक्षा का प्रकार बदल गया। कॉलेजेस खाली पड़े हैं, बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं, और रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स और समोसा और कचौरी और चाय बनाने वाले लोग भी खाली हो गए। उनको भी लगाने, जो कभी नहीं सोचा गया था कि शायद, लोग उससे कहते थे कि सर चाय की दुकान तो कभी बंद नहीं होगी, कोई भी बिजनेस कर लो, लेकिन वो तक बंद होगी। So this COVID has given you an opportunity, an extremely and great opportunity, जो सोची भी नहीं जा सकती थी, जो मनुष्य के द्वारा शायद लाई भी नहीं जा सकती थी। अचानक इस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसा हो गया कि अब आपके लिए एक इतना शानदार समय है, जब आप इन दो वर्ड्स पे अगर ध्यान देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, आप बहुत बड़ी दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी कैरियर अपॉर्चुनिटी है आपके जीवन की, जब आपको सफेद स्लेट मिली। इसके पहले जब हम लोग बिजनेस शुरू करते थे, या बिजनेस के बारे में सोचते थे, या एंटरप्रेन्योरशिप करने की सोचते थे, तो हमको सोचना पड़ता था कि भाई, इतने लोग इस क्षेत्र में पहले से हैं, ये पीयर्स हैं, ये इतने बड़े हैं, ये ऑलरेडी ये कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे अब नया। पर आज मजेदार बात यह है कि जो पीयर्स हैं, जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, वो आपसे पूछेंगे, सर मुझे करना क्या है बताओ, क्योंकि मैं जहां फंसा हूँ, ये पहले कभी हुआ नहीं। ये कभी हुआ ही नहीं था कि हवाई जहाज बंद हो गए हैं, 6 महीने से ट्रेन बंद है। भारत में कभी 200 साल के इतिहास में ट्रेन बंद नहीं हुई, ट्रेन बंद है। सो उन्होंने भी कभी नहीं, उनके पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर उस ट्रेन पे खड़े थे। उनका सारा ट्रैवल, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ जिस पे आधारित था, वो बंद हो गया। कभी सोचा ही नहीं था। कभी सोचा ही नहीं था कि किराने से लेके सब्जी तक सब मोबाइल से मंगाई जाएगी, और उसके ऐप बन रहे होंगे, और लोग सब्जी तक ऐप से मंगा रहे होंगे, खाना तक तो छोड़ी, सब्जी भी ऐप से मंगा रहे होंगे। डॉक्टर्स ऑनलाइन हो गए, इंटीरियर डेकोरेटर्स ऑनलाइन हो गए, एजुकेशन सारी ऑनलाइन हो गई, पढ़ाने वाले ऑनलाइन हो गए, बोलने वाले ऑनलाइन हो गए। और जो लोग ट्रैवल करते थे, मैं हर साल 5 जगह ट्रैवल करता था, मैं लोगों को इनवाइट करता था, टिकट बुक करो, होटल बुक करो, और पता नहीं क्या क्या करते रहो। सब कुछ खत्म हो गया। अब केवल कहना पड़ता है 15 मिनट पहले सर आप लॉग इन हो जाइए। जैसे आज मुझे सिस्टर राती पर आना पड़ता, तो शायद 2 बजे के लिए शायद मैं 12:30-1 बजे निकलता, कि भाई वो सिस्टर राती भर तक पहुंचना है। 20 मिनट पहले आता, फिर आपके साथियों के साथ बैठता, फिर यहाँ आता। Now see how it's so comfortable. I'm sitting in my office, and we are all listening to each other, and that's a wonderful thing which is happening. And this gives them an immense opportunity to all the youngsters, especially in engineering, MBA, and all those people who are looking for something. They can change the world. And yes, it's time for you to change the world. And that's why your education and institution has rightly put it, career opportunity, entrepreneurship, and
innovation. So I just brief you about what is this. Before that, just I request your professor to play two videos, small videos. So it is a portable water filter which fits for any PET bottle generally available into the market. So I would just show you one small demo how the filter works. So this is a filter. Normally you carry PET bottles anywhere while traveling. So I would just take one PET bottle and show you the demonstration how the filter works. Dude, he has done something that is revolutionary. He's a young innovator from Karnataka, and please watch it. So this is a PET bottle. So you can see that it is like filled with a dirt, and this filter, So it's very dirty water. yeah, kind of dirty. For the demonstration purpose, I've taken it. This is a filter. Just Just move it. You just fit. You need to just fit the bottle and just pull the zipper, and just squeeze and drink the bottle. I can drink that now. Yeah, you can. Wow. So you can see That's the it. difference. You can see the difference. I can really Yeah. drink it. It's You- safe. Yeah. Sure? Yeah. Wow. And it is beautiful. Thank you. So it takes care of all the things, and it is Yeah. drinkable. Yeah. So this is a portable filter. We are coming with an advanced model where it would remove also bacteria and viruses up to 99%. This removes up to 60%. And it is just a few rupees. It just costs 30 rupees. 30 rupees. He's changing the world. And you can do that for seawater also. We are coming up with a model. It is in a big. See, this boy has made small filter, and that filter can purify the water, even the seawater. See the innovation which is coming in place. If you see the next video, I won't say that play the whole video, just show the little glimpse of that next video. India's first standing wheelchair is here. IIT Madras, in collaboration with Phoenix Medical Systems, launched the unique wheelchair named Arise on November 5th. This wheelchair enables persons with disabilities to shift from sitting to standing position without any external support. It is fully customizable while still being mass manufactured, which is one of the reasons it is so affordable at just 15,000 rupees. The wheelchair is suitable for outdoor use and on uneven terrains as well. So this is the two things. You can all clap. Whoever is seeing it can clap for this innovation and entrepreneurship. This is what innovation. How you can think new. Innovation is about how you think new. It's not about creativity, but it's about innovation. Innovation is a process. It's a process which you create new. So creativity is a part of innovation. Just go on my next slides, 2 slides on my presentation where I talk about what is entrepreneurship. Many slides. So entrepreneur is very simple. Whatever is there on this slide, you just read it. All the people who are seeing it can read it. But yes, I just tell you what I understand by entrepreneur. Entrepreneur बनने का सबसे सीधा समझ ये है. Entrepreneur का हिंदी मीनिंग साहसी होता है. ऐसा व्यक्ति जो साहस रखता है, हिम्मत रखता है, ऐसा व्यक्ति जो रिस्क टेकर होता है, ऐसा व्यक्ति जो फाइनेंशियल रिस्क उठाता है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ऐसा व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होता है. मैं आपको फिर से समझाता हूँ, आप सारे यंगस्टर्स, मैं आपको फिर से समझाता हूँ. हम अगर आप भी अगर कभी किसी ग्रुप में बैठते होंगे और आप सारे दोस्त लोग भी आपस में कुछ न कुछ बात करते होंगे, तो आप एक चीज जानते होंगे कि आप सबके पास भारत में होने वाली बहुत सारी समस्याएं, हमारे देश में होने वाली बहुत सारी समस्याओं पे आप बात करते होंगे, और आप में से ज्यादातर लोगों के पास उसके सोल्यूशन भी होते हैं. आप ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर लोगों के पास उसके सोल्यूशन भी होते हैं. हर आदमी कहता है इसका ये ऐसा कर दें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन उसमें से उसको एग्जीक्यूट करने का मद्दा बहुत कम लोगों में होता है. सो ऐसा कुछ भी जो कि सबका सोल्यूशन सबको पता है, लेकिन जो करने का मद्दा रखता है,
उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो रिस्क उठाता है, फाइनेंशियल रिस्क उठाता है, उस काम को करने के, उस सोल्यूशन को करने की रिस्क उठाता है, ऐसा व्यक्ति एंटरप्रेन्योर कहलाता है। डेफिनेशन जो गूगल पर है और जो जहां भी है और जो यहाँ पर लिखी है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योर है वो व्यक्ति है जो सोल्यूशन को ढूंढने के लिए एक प्रयास करता है, एक रिस्क उठाता है। और इनोवेशन का मतलब ये होता है कि जब आप एक पब्लिक एट लार्ज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम अर्थात 100 में से 60 लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ नया तरीका ढूंढते हैं जिससे उतने सारे लोगों की एक साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो हम उसको कहते हैं कि उसने कुछ इनोवेटिव सोल्यूशन ढूंढा है, कुछ नया ढूंढा है। मैं क्रिएटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इनोवेशन प्रोसेसेस में होता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिएटिविटी ग्लास का या बॉटल का शेप बदलने को क्रिएटिविटी कहते हैं, मोबाइल के शेप बदलने को क्रिएटिविटी कहते हैं, लेकिन जब आप उसकी फंक्शनैलिटी को बदलते हैं, जब उसकी आप प्रोसेस को बदलते हैं, उसके यूजेज के प्रोसेस को बदलते हैं, हम उसमें इनोवेशन पाते हैं। सो क्रिएटिविटी इज अ पार्ट ऑफ इनोवेशन। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी भी लेवल पर नए क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सो फॉर स्टूडेंट्स आपके लिए दोनों लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। ये दोनों ही, मेरी नेक्स्ट स्लाइड पिक करिएगा, इसमें मैंने इनोवेशन की डेफिनेशंस लिखी हैं और इनोवेशंस आपको हेल्प करता है किन किन चीजों में, बिजनेस को ग्रो करने में। जितने भी इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, जितने भी नए आइडियाज होते हैं, ऐसा कहा जाता है, मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता हूं जिसका नाम BNI है, जिसका फुल फॉर्म बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल है, और वो हमेशा उसकी कोर वैल्यू है ट्रेडिशन प्लस इनोवेशन। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये कोर वैल्यू पढ़ी, ट्रेडिशन प्लस इनोवेशन, तो मैं हमेशा सोचता था कि ट्रेडिशन प्लस इनोवेशन क्यों लिखते हैं। फिर मुझे पता लगा कि अच्छा, इसका ये मीनिंग है कि जो ट्रेडिशन है, जो हमारी कोर ट्रेडिशंस हैं, हमको उसको हमेशा कैरी करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने को समय के साथ बदलाव न लाएं। हमको समय के साथ बदलाव लाना चाहिए, इसलिए इनोवेशन भी होना जरूरी है, उन प्रोसेसेस में इनोवेट, नयापन आना भी जरूरी है। तो हम जो चीज हमेशा से करते आ रहे हैं उस ट्रेडिशन को हमेशा हम रिफ्रेश करते रहें, तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। और ये भी बिजनेसेस में बहुत जरूरी है कि जब हम कुछ भी नया कर रहे हो तो हम अपनी बेसिक कोर वैल्यूज को हमेशा इंटैक्ट रखें। इनोवेशन तभी सक्सेसफुल हो पाते हैं जब पीछे के ट्रेडिशन बहुत स्ट्रांगली फॉलो किए जा रहे हैं। So always remember, innovation helps the business grow in bounds. Innovation helps make a niche for yourself in the competition. Correct. If you innovate something, you always have a special place in the whole market area. आप ध्यान से सोचिए, ओला, ओयो, जोमेटो, ये सारे इनोवेशंस हैं। ना ओला ने एक टैक्सी खरीदी, ना ओयो ने एक होटल बनाया, ना जोमेटो ने एक भी रेस्टोरेंट खोला। इन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। इन्होंने क्या किया, एक प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने उस प्रॉब्लम की प्रोसेस को सॉल्व कर दिया। जोमेटो ने तो सोचा कि शायद संडे को लाइन बहुत लगती है, खाना बहुत मुश्किल से मिलता है, क्यों ना घर पे बैठ के आराम से खाया जाए। उसने इस थॉट प्रोसेस को, आपको जहां से जब भी खाना चाहिए हो मंगाने का एक थॉट प्रोसेस, एक प्रोसेस डेवलप कर दिया एंड वो इनोवेटिव हो गया। इसमें जो सबसे बड़ी खास बात आई कि ये जितने भी रिस्क टेकर थे जिन्होंने इस इनोवेशन को साथ में लिया, चूंकि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट से बात कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, इन सब में सबसे बड़ा रोल किस चीज का रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर चैट बॉक्स पे देख रहा हूं, पर इनोवेशन में सबसे अधिक रोल हुआ टेक्नोलॉजी का। तो ध्यान दीजिएगा, इनोवेशन आज के जमाने में टेक्नोलॉजी के साथ क्लब हो गया है। कोई भी इनोवेशन आज की डेट में स्केलेबल तभी हो पाता है जब उसमें टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई। बिना इनोवेशन, बिना टेक्नोलॉजी के वो इनोवेशन स्केलेबल नहीं हो पाता और हम मास तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए जितने मेरे इंजीनियरिंग साथी यहाँ पर कुछ देख रहे हैं वो इस बात को ध्यान दें कि जब भी वो किसी इनोवेशन को कर रहे हो या जब भी किसी नई चीज को सोच रहे हो, तो एक तो उसका विजन बहुत बड़ा हो, उसकी सोच बहुत बड़ी हो, और उस सोच को बड़ा होने के लिए जरूरी है कि आप उसको जब एग्जीक्यूट करें तो आपके पास टेक्नोलॉजी का सपोर्ट। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं होगा तो मान के चलिए आप इनोवेशन आपका बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। सो दैट्स व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। और ये क्यों अभी जरूरी है सबसे ज्यादा एज कैरियर ऑप्शन, क्योंकि आप
एकदम नई दुनिया में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप सफेद स्लेट, खाली स्लेट पे लिखने के लिए बैठे हैं। जिन्होंने 20 साल से बिजनेस किया है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वर्तमान में उनको अपने बिजनेस को कैसे चेंज करना है। उन्हें तो चेंज करना है और आपको शुरू करना है, दोनों में फर्क है। उन्हें चेंज करना है और आपको शुरू करना है, तो शुरू करना बहुत आसान होगा। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, केवल आगे बढ़ने के लिए ही सब कुछ है। सो विद दिस एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, आज की डेट में कॉलेजेस चाहते हैं, इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बने, इसलिए ऐसे सेमिनार करा रहे हैं, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि जिस हमारे देश में अगर आज की डेट में हमको देशभक्ति दिखानी है, हमको अपने देश के प्रति कमिटमेंट दिखाना है, तो हमें दूसरे लोगों को एम्प्लॉय बनाने लायक बनना पड़ेगा। वी शुड कैपेबल, मेक ourselves capable that we can employ more people from our country. अगर हमारे कंट्रीमैन, हमारे साथियों को हम जॉब देने वाला बन सकें, तो ये भी एक हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूशन होगा, हमारी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन होगा। अगर हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं, अगर हम किसी और को जॉब देने वाला बनते हैं। I just give you a few examples how innovation and how technology has made some changes, and Hamisha is making a changes where every time with the help of technology they thought of new. The most of them are technology people and how they have given these things. So I just change करिए slide को और मैं slide को आपको बतला पाऊंगा। देखिए कुछ खास लोग जैसे Appointy.com, आप सब जानते होंगे भोपाल में एक जबरदस्त सक्सेस है Appointy.com, जिन्होंने Appointy.com को आप जरूर सर्व करिएगा। एक बहुत बड़े प्लेयर हैं आज की डेट में। ही इज हैविंग 100 crores of company valuation. How he started, he is a journey, Nimish, and Appointy.com. Again, an innovation, a thought that how somebody can manage his appointments, and how customers and how patients and all other people who wants to seek an appointment can be taken online. So he's serving to multiple people. That innovation has made him so big. He is now presently at hundreds of countries. He's serving, his clients are in hundreds of countries. Because of technology, he can reach to those people. If suppose he has not made any technology support, what would have we done? आप जो भी सोचे और उसमें कोई टेक्नोलॉजी का प्रयोग ना हो, तो आप उसको भोपाल तक ही सीमित कर पाएंगे, या जिस शहर में आप रहते हैं बस वहीं तक पहुंच पाएंगे। इसलिए इनोवेशन के साथ टेक्नोलॉजी जरूरी है। आपके ओरिएंटल कॉलेज से ही निकले हुए द कबाड़ी वाला .com को आप देखिए। द अनुराग असाटी हैज व्हाट थॉट ही हैज कम। उसने सोचा जब कबाड़ी वाले इतने सारा बिजनेस करते हैं, तो क्यों ना कबाड़ उठाने वाले बिजनेस को हम स्टैंडर्डाइज और इनोवेट करते। उन्होंने उनका कबाड़ी वाला एक स्टार्टअप है और एक सक्सेसफुल स्टार्टअप है, और जिस ढंग से प्रोफेशनल ढंग से वो कबाड़ी वाले का काम करते हैं, 5 स्टेट्स में करते हैं, अपने आप में पिछले 4 या 5 साल में सक्सेस है। क्या चूज किया उन्होंने, चाहे निमिष जी ने चूज किया हो, चाहे अनुराग जी ने चूज किया, वो दोनों के पास चॉइस होगी कि वो कहीं जॉब करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आई हैव ए सोल्यूशन, सो आई हैव टू वर्क फॉर इट. If I can serve this society with this solution and I can give jobs to other people, so I will contribute to the society. And that's motive, I think, with everybody, whosoever in the business, including myself, is having only one motto, and that is to serve the society. And taking that risk, we feel good about it, that yes, we are contributing to the society in a way that we can employ more and more people, my own countrymen, my own colleagues, and I can build something meaningful for this country. All these people are thinking like that only. PhysiCure is another wonderful concept which Dr. Anant has brought. डॉक्टर अनंत ने सोचा, खुद पेशे से डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपी है, लेकिन उन्होंने सोचा कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना और फिजियोथेरेपी को बाद में घर पे करते रहना और हर बार फिजियोथेरेपी की फीस देना शायद कठिन होगा। तो कुछ इस सेशन के बाद क्यों ना मोबाइल एप्लीकेशन ही ऐसी डेवलप कर दी जाए कि फिजियोथेरेपी के सारे काम मोबाइल ऐप पे ही होने। ऐप पर आपको फिजियोथेरेपी करनी कैसे, जनरली हम घर पर आके भूल जाते हैं कि डॉक्टर साहब ने कैसी वाली एक्सरसाइज बतलाई थी, कितना हाथ मोड़ना था और कहां तक मोड़ना था। मोबाइल वो आपका काम कर देता है, ऐप वो काम कर देता है। So PhysiCure is wonderful technology tool where you can take appointment from physiotherapist, but also can move further with various physiotherapy exercises through mobile app. So the technology which is helping you
grow your business, can grow your business, can reach to multiple people. मैं ये उन लोगों का नाम ले रहा हूँ यहाँ पर साहब जो भोपाल के हैं। मैं जानबूझ के भोपाल के लोगों के नाम लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ ताकि भोपाल वाले साथियों को ऐसा ना लगे कि अरे सर ने तो सूरत वालों का नाम ले दिया, बंबई वालों का नाम ले दिया, वहां तो बहुत सुविधा है, वो तो IIT में पढ़ते हैं और जो लोग यहाँ पढ़ते हैं और वहां पढ़ते हैं, मैं तो यहाँ पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है। ये सब वही सब लोग हैं जो आपके जैसे ही आज से 4-5 साल पहले, 10 साल पहले कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पढ़ते थे, आपके जैसे ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में थे। ब्रेन सीडर अंकित गुप्ता भी भोपाल से ही हैं। ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर बट ही स्टार्टेड अ थॉट प्रोसेस दैट विद एलोपैथी, होम्योपैथी एंड ऑल द therapies, why not to come with the sound therapy? Sound therapy is a very perfect science which can cure multiple diseases. And thousands of customers he is having. He is with me for the past 3 years, and I'm seeing that how people are taking interest in sound therapy and how getting cured. बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति जो इंजीनियर था उसने साउंड थेरेपी पे काम किया और साउंड थेरेपी पे सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। अगेन एन इनोवेशन, अगेन अ न्यू थॉट प्रोसेस, अगेन एंटरप्रेन्योरशिप, टेकिंग a risk in new area where somebody has not even gone far. So again engineering fellow, and we have more people who have joined, like Green and Gains, another one couple, both are from Kotak Mahindra Bank, and Pratik and these people, and they have left their banking jobs and they started doing this agriculture, and they are successfully doing it, organic farming and all those things. So this is also a wonderful thing which has happened in today's world, right? So this is how people are growing. I just want to give you the examples where people are growing with thought mindset of entrepreneurship and activity with innovation, taking technology as their support. So understand, whosoever wants to make a career option as entrepreneurship, आपके कैरियर में अब आप लिख लीजिए कि भाई मेरे को जॉब के देने के अलावा जॉब देने वाला भी होना चाहिए। लेने के लिए तो बहुत सारी कंपनियां आएंगी, आपके कॉलेज में बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे आई वांट टू गिव यू दिस पे चेक, ये CTC आपको ऑफर करना चाहता हूँ। लेकिन आप सोच के देखिएगा कि क्या वो CTC आप किसी और को भी दे सकते हैं? क्या आप अपने आप को 4 या 3 या 4 या 5 सालों में इतना कैपेबल कर सकते हैं कि आप वो CTC किसी और को ऑफर कर सकें? So this is a big opportunity, and the best part, college is supporting you, government is supporting you, associations, entrepreneurs, businessmen like us is supporting you, mentoring you, funding you. That's why I told you this is the best time for all of you, whosoever in this ecosystem, that this is the best time to innovate. This is the best time to do entrepreneurship, because time is very fine. And I have just given you a few examples, and I have hundreds of such examples where these people have chosen to become an entrepreneur rather than an employee. The next slide, please. So future lies in multiple businesses. If you see, we have great numbers of, जो मैं लगातार देख रहा हूँ कि आज की डेट में अगर आप देखें तो KPMG कहता है कि 3500 एजुकेशन टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, मैं फिर से BNI की बात करूंगा, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल की बात करूंगा, क्योंकि उन्होंने एक 7 दिन के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, वो ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो मुझे लगता है कि नयापन आने वाला है या आ सकता है, या जो लोग इसको सुन रहे हैं वो ध्यान से सोचें कि हम लोग एक ट्रेनिंग करते थे, उस ट्रेनिंग में 5 दिन की वो ट्रेनिंग हुआ करती थी। कितने दिन की ट्रेनिंग हुआ करती थी? 5 दिन की ट्रेनिंग होती थी, 10 घंटे रोज, तो टोटल 50 घंटे की हम ट्रेनिंग करते थे। और वही ट्रेनिंग BNI ने कन्वर्ट कर दी 9 घंटे की ट्रेनिंग, 3-3 घंटे की 3 ट्रेनिंग्स। अब सोचिए, सारा कंटेंट, 50 घंटे का कंटेंट 9 घंटे में कवर अप हो गया, माइंड मैपिंग और वेरियस टेक्नोलॉजीज के कारण। आप सोचिए, पूरा कंटेंट 50 घंटे का 9 घंटे में कन्वर्ट हो गया, एक नई अपॉर्चुनिटी खड़ी हो गई। क्या कंटेंट डेवलपमेंट ऐसा हो सकता है? क्या आने वाले समय में ऐसा एजुकेशन सिस्टम में कुछ आ सकता है ताकि हम कम समय में ज्यादा दे सकें, कम समय में हम बहुत ज्यादा डिलीवर कर सकें? ऑनलाइन ने ये सुविधा दे दी है कि आप बहुत ज्यादा भी संक्षेप में कह सकते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के कारण ही 3500 से अधिक एजुकेशन एडुटेक
स्टार्टअप्स बाजार में आप देखिए, क्योंकि ये जान रहे हैं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त कैरियर की उनके सामने है। वो आप जैसे ही कोई ना कोई साथी हैं जो यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे, सो एट स्टार्टअप्स को टोटल 1.8 बिलियन डॉलर की फंडिंग्स भी मिली है। इसका मतलब है इन्वेस्टर्स जो हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, और ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी एजुकेशन स्टार्टअप बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसमें खास बात देखिएगा, आज की डेट में हर स्टार्टअप या हर एंटरप्रेन्योर के साथ एडुटेक, हेल्थ टेक, एग्री टेक, टेक वर्ड जरूर लगाए सर, ध्यान दीजिएगा, टेक वर्ड बहुत जरूरी है। मैं शुरू से कह रहा हूं, अगर आप इसको अपना कैरियर ऑप्शन मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको कैरियर कंप्यूटर इंजीनियर होना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आपको टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाले बिजनेस के बारे में सोचना है। एंटरप्रेन्योरशिप जब आप किसी भी मॉडल को सोचें तो उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इनपुट जरूर होना चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियर होना या मैकेनिकल इंजीनियर होना जरूरी नहीं है। सिमिलरली आप देखिए, कोडिंग कितना बड़ा, कोडिंग का एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हो गया, और आज की डेट में ये 1.14 बिलियन डॉलर का मार्केट क्रिएट हो गया है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोज बच्चे सुनते हैं, रोज इसके बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हेल्थ सेगमेंट में, जैसी मेरी एक छोटी सी स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि जो 2014 में 668-63 मिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी था, वो 10 गुना हो गया 6 साल में। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आर्टिफिशियल रूप, ये 10 गुने की रफ्तार से बढ़ गया है। तो इस पर हमको बहुत सीरियसली ध्यान देना है, बहुत सीरियसली हमको इन पे सोचना है कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे इंक्लूड करें जब हम इसको अपने कैरियर ऑप्शन के रूप में सोच रहे हैं। तो जब भी आप किसी बिजनेस के बारे में सोचते हैं या जानना चाहते हैं, तो आपको अपने साथी, ऐसे साथी की भी मदद लेनी है, और आपको जो भी सोचना है, जो इनोवेशन करना है, वो ऐसा करना है जो स्केलेबल हो सके, और स्केलेबिलिटी के लिए आपको टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। सो ध्यान दीजिएगा, आज जो मैं आपसे बात कर रहा था उसमें हमने फिर से वही बात की। पहली बात, कैरियर ऑप्शन में एंटरप्रेन्योरशिप को सोचिए, और एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन को आप क्लब इन करिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जब इनोवेशन के साथ प्लग होगी, तब आपको एक जबरदस्त सक्सेस, बहुत जबरदस्त सक्सेस मिलने की संभावनाएं बन जाती है। सो विद दैट नोट कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को एक बहुत बेहतर ऑप्शन माने कैरियर ऑप्शन में। अगर आप अपना करियर शुरू कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि अपना कुछ करें, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बतला दूं, मेरे पास थोड़ा समय है, कि कई लोग मुझसे पूछने आते हैं कि साहब हमने सोचा तो, पर कैसे सोचें और क्या सोचें। तो सबसे पहले तो हम सब सोचते हैं, हम सब सपने देखते हैं, और जो हम सपने देखते हैं ना, उसको हम ड्रीम कहते हैं। और ड्रीम किसको कहते हैं? जो सपना हमें याद रहता है। रात भर हम सपने, कुछ ना कुछ चित्र देखते रहते हैं, लेकिन याद जो रहता है वही केवल सपना होता है, ठीक है। और जब आप इन सपनों में ऑब्जेक्टिव जोड़ते हैं, तो वो आइडिया होता है। आइडिया वो तभी होता है जब उसका कोई उद्देश्य हो। अगर उसमें कोई उद्देश्य नहीं है तो वो सपने ही है। तो जितने भी मेरे साथी, जितने भी मेरे यंगस्टर दोस्त जो भी ड्रीम सोचते हैं, उनको लगता है मैं दुनिया में ऐसा कर सकता हूँ, ड्रीम देखने की आपकी उम्र है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव जोड़िए, और उस ऑब्जेक्टिव को जोड़ने के बाद उसमें गोल्स जोड़िए, पर्पस जोड़िए, विजन जोड़िए, और उसको एक बी प्लान के रूप में लाइए, मेरे पास लाइए, और मेरे जैसे बहुत सारे VSPL जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है वहां पर आइए। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी है, अपने शिक्षकों की मदद से हमारे पास आइए, और आपको लगता है कि हाँ ये मूर्त रूप में बदल सकता है, ये एक बिजनेस हो सकता है, we will happy to help you in terms of mentoring, in terms of funding supports, in any sort, if that idea is workable. सबसे पहले तो उस आइडिया को वर्केबल है कि नहीं, उसको बनाने के लिए उसमें गोल, पर्पस और ऑब्जेक्टिव डालिए, और आपको लगता है कि यह हो सकता है, हमसे जरूर मिलिए। हम उसको शेप अप करेंगे कि आपके कैरियर में ये एक स्टेपिंग स्टोन हो जाए। हम लोग आपको मदद करेंगे कि आप किस तरह से आगे बढ़कर अपने उस कैरियर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकें जो आपका इंस्टीट्यूशन आपसे कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन को आप एक कैरियर अपॉर्चुनिटी मानिए। तो आप भी उसी कैरियर अपॉर्चुनिटी को मानिए। मेरी तरफ से मदद आपको ये रहेगी कि जब भी आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया आता है, सबसे पहले तो आइडिया बहुत बड़ा होना चाहिए, अर्थात उसका जो थॉट प्रोसेस है वो ग्लोबल होना चाहिए, नेशनल होना चाहिए,
कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो काफी बड़े समुदाय का सोल्यूशन कर सकती है, अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है और आप उस बारे में कुछ नया सोच पा रहे हैं, आप मुझे संपर्क करिए। निश्चित मानिए आप भी किसी न किसी प्रेजेंटेशन का हिस्सा होंगे। आप भी किसी न किसी प्रेजेंटेशन में आपकी स्टोरी लोग सुना रहे होंगे, मुझ जैसे लोग आपकी स्टोरी पढ़ा रहे होंगे और सुना रहे होंगे कि देखिए भाई, इस व्यक्ति ने सिस्टेक से ये पढ़ाई की थी, ये इंजीनियर बना था, लेकिन इसका ये जो आइडिया है, ये इतना बड़ा हो गया कि अब ये उदाहरण के रूप में लिया जाता है। So that's an opportunity because entrepreneurship gives you a glory, entrepreneurship gives you a prestige, and entrepreneurship gives you a satisfaction to the life that you have contributed to the society to grow towards next level. Thank you very much for giving me this opportunity to speak on this occasion and for this wonderful topic. I have stopped just on 41 minutes because I want that more and more people should ask questions about what they want to understand and what they understood so far for entrepreneurship and innovation. So please, I welcome questions rather than speaking from the fun side because I cannot see anybody. So it's your time to I'll do ask that the question. for you, sir. Sure, sir. We are actually indeed very thankful to you, sir, that you have connected with us. As you have said that during the Corona pandemic, it was difficult for you to come over here, but online medium, which we have chosen, and we are actually getting acquainted to it. Sabhi seekh rahe hain through classes, through webinars. So by now they are getting used to it, and we are really thankful that this is truly a worthy outcome of the day by connecting with you today. I myself have Thank you. made pleasure, sir. I would say here, sir, I myself have been listening to you from past many times as you have earlier come to our college. आपने जैसे बताया था आप college में और भी events में आ चुके हैं. The event which we have had in college was national conference on recent advances in automobile and thermal engineering. Even that program had turned out to be a massive success for us. So this is the reason we always want you to come over here and do share your valuable thoughts with our students. Yeah, and the key learnings which I and our participants have taken out from your valuable speech from today's program is like you have given a complete new definition of entrepreneurship to us, sir. And you have actually instilled a belief in us that we can do. जो हमारे participants हैं, budding talents हैं जो connected है हमारे साथ, and they are all in the informative years of their engineering. So कई ideas रहते हैं उनके पास, but they do not know where to go. Who would be the right mentor for them? So definitely आपने वो आज काम किया है हमारे students के लिए and other participants के लिए. And students actually, sir has shared his email ID with us. So we would be circulating it in all the students group. So laterwards, in case you have some good ideas which is out of the box, you can definitely contact sir for the same. And some more key learnings I would like to share with you, sir, which I have learned from your program is like to understand a business or to run a business, it is very important to go into the deep root cause of that business and what the society wants. So आपका जो perspective लगा, मैं उसको थोड़ा सा expand करना चाहूंगा. We generally say that what is your problem statement? Problem statement मतलब आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में या कुछ नया करना चाहते हैं. अगर आपको प्रॉब्लम इजीली और डिफाइन हो गई, आप इजीली, जैसे आपको याद होगा जब हम सब अपने सीवी में ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं और जनरली हम सब ऑब्जेक्टिव एक दूसरे का कॉपी करके लिखते हैं कि जो उसने लिख दिया वो सबने ही लिख लिया, पर ऐसा होता नहीं है. हर का करियर ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है और वही डिफाइन करता है कि आप आगे क्या बनने वाले हैं. वैसे ही जब हम किसी बिजनेसमैन को या यंग स्टार्टअप को सुनते हैं या जानना चाहते हैं तो हम सबसे पहले जानना यही चाहते हैं कि अल्टीमेटली उसका प्रॉब्लम एरिया क्या है, उसने क्या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है. और जितना क्लियर वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाता है वो उतना ही बेहतर सोल्यूशन भी दे पाता है. अगर वो प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर पाता है तो वो फिर सोल्यूशन देने में भी उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है. Absolutely, sir. So in that way, you can understand that you truly empathize with society. जो society की need है, you are actually urging us to work for society in a better way. And we also hope our students from Systech Ratibad would come up with great ideas and would have great innovative thinkings.
so that you will be well known in the town and at great levels. So now being the moderator, let me now bridge the gap between the audience and our expert by putting up some questions which have been asked by our participants. So here I would start with the first question, sir. This question has been asked by the participant Charuni Deshmukh. So she wants to ask, are risk and sacrifices very important and necessary to start a business? So she wants to know more about risk taking and all in a business. It's not about sacrifice first. Sacrifice तो कुछ नहीं है. देखिए, कोई भी चीज बड़ी करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है. और रिस्क इसलिए कि रिस्क, मैं कभी भी रिस्क को रिस्क नहीं मानता, क्योंकि रिस्क तो हर चीज में है. मतलब ऐसी कोई लाइफ में चीज ही नहीं है जिसमें रिस्क ना हो. आप सड़क से बाहर, घर से भी बाहर निकले तो भी रिस्क है. सड़क पे चलना भी रिस्क है, और हर चीज में रिस्क है. एवरीथिंग इज रिस्क. आप बाहर कुछ खा लीजिए तो भी रिस्क है. और तो रिस्क तो हर जगह एसोसिएट है. पर हम करते क्या है, हम उस रिस्क को कैलकुलेट कर लेते हैं. जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार तो हम हेलमेट पहन लेते हैं, कार चलाते हैं तो हम बेल्ट लगा लेते हैं. ये क्यों करते हैं? हम सेफ्टी मेजर्स लेते हैं उस रिस्क को कम करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए. इसी तरह से जब आप किसी आइडिया पे काम करते हैं या किसी भी चीज पे काम करते हैं, तो आपको वो रिस्क और रिटर्न एक साथ जुड़े हुए पहलू के दो हिस्से हैं. अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको कुछ रिटर्न करना है, और ये बात मान के चलिए कि एंटरप्रेन्योरशिप हाईएस्ट लेवल ऑफ कैरियर ऑप्शन है. जो लोग बहुत बेहतर पदों पे भी होते हैं और जो लोग बहुत बेहतर कुछ जीवन में कर रहे होते हैं, वो भी मुझसे बोलते हैं, भाई हम अपना कुछ करना चाहते हैं. सो इट गिव्स ऑलवेज. मैंने आज तक किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर के या सक्सेसफुल बिजनेसमैन को नहीं देखा जिसने कभी ये स्टेटमेंट दिया हो कि आई वांट टू डू अ जॉब ऑफ जनरल मैनेजर और एनी वाइस प्रेसिडेंट इन एनी ऑफ द कंपनी. बट अ वेरी सीनियर ऑर्गेनाइजेशन ओनर या कोई वीपी भी हो या प्रेसिडेंट भी हो, वो भी एक स्टेज पे आगे आदमी से कहता है कि आई वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू व्हिच आई कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. सो एंटरप्रेन्योरशिप इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ career option. Once you are on a highest level of career option, थोड़ी सी तो रिस्क बनती है ना भाई. अगर कुछ भी करने जाओगे तो रिस्क है. कुछ भी करोगे, जॉब भी करने जाओगे तो जॉब में परफॉर्म करने की रिस्क है. रिस्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो जॉब से जाने की रिस्क है. ये रिस्क तो हर जगह है. अब उस रिस्क के साथ ही आपका रिटर्न जुड़ा हुआ है. तो अगर आपको हाईएस्ट पे काम करना है तो थोड़ा सा तो इनिशियल रिस्क उठानी पड़ेगी. बट मान के चलिए, मैं आपको फिर से एक बहुत सारा एग्जांपल देता हूँ, मैं जो हर जगह देता हूँ, कि जो जॉब करते हैं लोग या जो खुद ही काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, इनमें 2+2 और 2x2 का फर्क होता है. 2+2 का मतलब क्या होता है? दोनों का आंसर 4 आता है. 2 धन 2 का भी आंसर 4 आता है और 2 into 2 का भी आंसर 4 आता है. तो इनिशियल लाइफ में आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि जिस व्यक्ति को 5 लाख की सीटीसी मिली, आपके दोस्त को 3 लाख की सीटीसी मिली, तो आपको लगेगा यार उसका जीवन अच्छा चल रहा है, मेरा स्ट्रगल बहुत ज्यादा है. क्योंकि शुरुआत में स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है जब आप बिजनेसमैन बनते हैं. तो वो 2 धन 2 और 2+2 एक ही होता है, 2 into 2 के बराबर होता है. थोड़े दिनों बाद क्या होता है, 2+2 और +2 वो 6 हो जाता है. आप 2 into 2 8 हो जाते हैं. थोड़ा बेहतर होते हैं. इसलिए बहुत सारे लोग आपको बोलते हुए सुने गएंगे, आपके बड़े ब्रदर होंगे या जो भी सीनियर होंगे, जो एक स्टेज पे आने के बाद कहते हैं यार जॉब बहुत दिन कर ली, अपना कुछ करते हैं. सो अपना कुछ करते में उनके विचार ही ऐसे आने लगते हैं कि भाई ये 2 धन 2 अपन 6 पे पहुंचे, वो 2 धन 2 into 2 पर 8 पे पहुंच गए. बट बेसिक डिफरेंस आता है जब आप 15 से 20 साल निकाल लेते हैं, तो वो जो 2 into 2 वाला होता है ना, वो 512 पे पहुंच जाता है, और 2+2 वाला 16 पे होता है. So that big difference comes, but you have to spend that 10-15 years to do the best part of the business. So entrepreneurship is a long journey. It's a career option for the whole life. People create entrepreneurship and empires and organizations devoted his whole life. So once you are there, risk is a very small part of it. Right, sir. So as you have said that entrepreneurship, it's actually not a destination, it's a journey. So you have to be on that journey. Right, sir. So, and with this positive aura, I'm thinking, sir, I don't think anybody around you would be negative. So, but yes, I feel it. So with this, I ask the second question, which is actually put up by one of our students, Ankit. So Ankit would like to ask you about
how a technical student can connect himself with the entrepreneurship. Although you have already elaborated and given more details on it, but एंटरप्रेन्योरशिप सर, एंटरप्रेन्योरशिप मैंने बताया ना, एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक माइंडसेट है। और टेक्नोलॉजी उसका एक टूल है केवल। टेक्नोलॉजी इज ओनली अ टूल टू दिस होल जर्नी। आप अगर कोई भी चीज कर रहे हैं, सो एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट है और टेक्नोलॉजी केवल एक टूल है। आपको जरूरी नहीं है वो टेक्नोलॉजी या वो टूल आता हो, वो किसी और से भी आप करा सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट है जो आपको ही करना होता है। उसके लिए टेक्नोलॉजी केवल एक टूल है। बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी भी एक। right, sir. तो फाइनेंशियल गाय हो, इंजीनियरिंग गाय हो, मैनेजमेंट गाय हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। Right, ये right. सारे उसके टूल्स। So, like you have been associated with various groups and almost in all the fields, like healthcare, science, technology. So, here's one of our participants, Asad, who would want to know some real life examples or some real life situations which you have faced while being in the business or while working with the other business mentors. किस तरह की एक्सपीरियंस भाई? माने एक्सपीरियंस मतलब किस तरह का एक्सपीरियंस? So see, he has like simply written real life experiences. एक्सपीरियंस तो सर हर दिन है। जब आप इस जर्नी में आते हैं तो एक तो बहुत अद्भुत जीवन है, क्योंकि आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ मिलते हैं। सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मुझे लगता है आज के जमाने में जहां पर मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जहां पर हर व्यक्ति व्यक्तिगत लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ जीना चाहता है कि जैसा वो चाहता है वैसा हो, जैसा वो रहना चाहता है वो ऐसा रहे। तो अगर वो इस थॉट प्रोसेस को मानते हैं तो उनके लिए तो एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा आसान है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। तो फिर रिस्क भी नहीं है और कुछ भी नहीं, क्योंकि जो आप चाहते हो वो आप कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से तो वो हॉबी हो गई। जब वो हॉबी हो गई तो फिर उसमें रिस्क भी नहीं बचती, वो तो केवल मजा है। सो आई वांट टू से कि जितने भी मेरे को जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस लगता है अपने इस एंटरप्रेन्योरल लाइफ का, कि मैंने अपनी जर्नी में ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला, या मैं ऐसे लोगों से मिला, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल साहब हों, चाहे आई मेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो बिकॉज ऑफ दिस। आई वोंट थिंक कि अगर मैं किसी जॉब में होता या किसी बड़ी कंपनी के किसी भी बड़े पद पर होता तो इनमें से किसी व्यक्ति से मैं मिल भी पाता। So I met personally and invited by the President of India for like one dinner invitation also, and all these good thing happens to me is just because I am into this career option जो मैडम ने लिखा है ना, कैरियर ऑप्शन। सो अगर मैं इस कैरियर ऑप्शन में नहीं होता तो ये सारी चीजें शायद मुझे नहीं मिलती। तो मेरा जो सबसे बेहतर एक्सपीरियंस कह सकता हूँ वो ये है कि एक तो मैं दुनिया भर के विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलता हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट के लोगों से मिलता हूँ। मैं किसी एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं हूँ। मैं केवल ऐसा नहीं कह सकता कि मैं फाइनेंस में एमबीए हूं तो मेरे से केवल फाइनेंस की बात पूछी जाए। मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ बहुत सारी चीजों को। तो सबसे बड़ा फायदा तो मुझे ये हुआ। और दूसरा, मैं ऐसे सभी लोगों से मिल पाया, और टेक्नोलॉजी ने तो मुझे और मजेदार दिया। अभी मैं रिसेंटली और कॉन्फ्रेंसेस को देख रहा था। टाई की कॉन्फ्रेंस में मैं था, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में, वीएनआई की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में था। सो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स को भी ऑनलाइन सुन पाऊंगा, या मैं जिनकी किताबें पढ़ता हूँ, जॉन मैक्सवेल की लीडरशिप पे, जॉन मैक्सवेल मेरे सामने ऑनलाइन बोल रहे होंगे और मैं उनसे, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं ऐसे मैं उनसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकता था। So that technology has given me this option, which is not generally possible for if would have been in a job. So मैं तो यही कहूँगा, this is the biggest experience which I feel as an entrepreneur I had in my life. Right, sir, and we really feel honored to have you here with us, who has such good real life examples. And जैसा कि आपने कहा कि लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं आप खुद अपने ओन बिल्ड करते हैं, so they just have to start their journey first of all. So with this, I start with another question, that is the last question which I would put up for the day for you, sir. The question has been asked by Mr. Ansh Mishra, and the question is, what are some common mistakes which is often being made by a startup entrepreneur? सबसे पहले तो उसको एक विचार छोड़ देना चाहिए कि उसको कोई फंड करेगा तो पैसे मैं बिजनेस करूंगा। तो सबसे पहले उस चीज को इसको समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति स्टार्टअप है या बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई उसे पैसा देगा
आगे हमें राइट। तो Yes, सबसे sir. पहले तो आप ये देखें कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो भी वो बिजनेस कर सकता है, इस थॉट प्रोसेस के साथ। तो सबसे बड़ी गलती जो मैं लोगों से, सर, वो तो अपना छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं और कहते हैं सर आई वांट मनी सो आई कैन स्टार्ट बिजनेस। नो 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 नो, मनी कम्स लेटर वंस यू वर्क। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, इट्स नॉट द प्रोडक्ट। आप कुछ करते हैं तो पैसा आता है। सो पैसे को केंद्रित होकर बिजनेस नहीं करते, पहले बिजनेस पे कंसंट्रेट करिए, जो करना चाहते हैं उस पर कंसंट्रेट करिए, पैसा अपने आप आने लगेगा। हाँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आज की डेट में सीड फंडर्स, इंक्यूबेटर्स, ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे साथी उपलब्ध हैं जो आपको मदद करेंगे। पर उद्देश्य फंड्स मिलने पर पैसा शुरू नहीं करना है, बिजनेस शुरू करके फिर पैसे के बारे में सोचना है। तो दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक पीपल डू। एंड सेकंड, द बिगेस्ट वन, बहुत सारे लोग और ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बहुत क्लियर करिए, उस पर ही सबसे ज्यादा वर्क करिए कि वो अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं। ये दो बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टार्टअप्स करते हैं, जो मैं लगातार देखता हूँ कि उनका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर नहीं होता। और दूसरा, दूसरे पैसे दे देंगे तो मैं बिजनेस कर पाऊंगा, मुझे फंड दे दीजिए क्योंकि मेरे दिमाग में विचार आया है। पैसे ऐसे आसानी से नहीं मिलते, पैसे बहुत हैं लेकिन आसानी से नहीं मिलते, पहले कुछ करना पड़ता है फिर पैसे मिलने शुरू। So these are the two things which I have found, which is very common in startups. Right, sir. So, like Ansh and all of us, we have got this valuable learning that excuses will not be entertained if you want to start with something new. And with this positive mindset, although I can see there are a lot many questions which have been put up for today, so I would be sharing the I request email all of ID. them. Yeah, Yeah. yeah. So that You would can be share fine. the email ID, or you can. I have also given the WhatsApp number, so Sure. anybody can connect me to WhatsApp, email, or anywhere. And डोंट कॉल प्लीज, हाँ, कॉल मत करिएगा क्योंकि वो थोड़ा सा मैं उठा नहीं पाऊंगा। अगर किसी मीटिंग में हुआ तो आपको बुरा लगेगा, और इसलिए मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। Sure, sir. I would be providing them the same. And with this, we come to the end of the program. But before winding up, I really feel privileged to express the vote of thanks from Sistek Ratibor. And I sincerely express my heartfelt gratitude and thanks to you, Mr. Pradeep Karambelkar, sir, for rendering you. your Thank you, precious time. Pleasure is all ours, sir. As you have rendered Thank your you. precious time, and you must be having a busy schedule for today, but it's because of our No, participants. it's only scheduled for you. Thank you, sir. It's really nice to listen to you. And here. along with Thank this, along with this, I would also thank the management committee for letting us organize such events in college. And a very special thanks to our respected principal, ma'am, for being so supportive and so vigilant to conduct such programs in college. And our technical team, backhand, and of course, all the wonderful and enthusiastic participants who have been connected until now. And we believe that we would be organizing some more programs like this, and we would like to have you for our further endeavors also, sir. So this is it for today's program, and the program is definitely very beneficial, and I hope it has benefited to the maximum of our audience, and we would surely like to be connected with you for our future endeavors, sir. So have a wonderful day, and all the participants, I would also thank you for patiently listening to us, and you can carry out with the day ahead then. Have a wonderful time ahead. you. Thank you.